غازی 13ویں صدی کے اناطولیہ ترکی کی تاریخ سے ماخوذ ایک عظیم الشان داستان ہے۔ ایمان، انصاف اور محبت کی روشنائی سے لکھی ایک بہادر جنگجو کی کہانی، جس نے اپنی ثابت قدمی اور جرت سے نہ صرف اپنے قبیلے بلکہ تمام عالم اسلام کی تقدیر بدل ڈالی۔ اووس ترکوں کے خانہ بدوش کائی قبیلے کو ایک ایسے وطن کی تلاش تھی جہاں ان کی نسلیں پروان چڑھ سکیں۔ کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل غازی نے اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنی جان و مال اور عزیز و اقارب کو خطرے میں ڈال کر اپنے جنگجوؤں کے ساتھ مختلف ادوار میں صلیبیوں، منگولوں، سلجوق سلطنت میں موجود غداروں اور دیگر اسلام دشمن عناصر کو شکست دی۔ 1280 میں ارطغرل کی وفات کے بعد اس کے بیٹے عثمان نے عظیم سلطنت عثمانیہ کی داغ پیل ڈالی، اور یوں خانہ بدوشوں کے اس قبیلے نے 3 بر اعظموں پر 600 سال تک حکومت کی۔ یہ ڈرامہ سیریل تاریخی کرداروں اور واقعات سے ماخوذ ہے۔ لیکن قبیلے میں تو ہم قبیلے میں بھی کچھ نہیں کریں گے۔ ارطغرل کی وجہ سے معصوم لوگوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ریاست سے وفادار ہر شخص کو بچانا میرا فرض ہے، خاص طور پر جب غدار کھلے عام ظلم ڈھا رہے ہوں تو ہم کسی وفادار کو نہیں کھو سکتے۔ گنال سردار آپ کی حکم عدولی کرتے ہوئے کائی قبیلے کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں ابھی تک ارطغرل کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ واہ، سلجوق سپاہی، آئے تو مجھ تک پہنچا دو اس سے جلد۔ زمیندار سے چھپ کر میں یہاں آئی ہوں۔ یعنی تم سعادتین کو بیگ کی جاسوس ہو؟ سلطان، ماں پری خاتون، آئے دو مجھ کو مکتوب بھیجو۔ آئے دو مجھ کو کائی قبیلے میں جا کر سلطان کو مارنا ہوگا۔ سپاہیوں، قبیلے کے چاروں اطراف پھیل جاؤ۔ سعادتین کے وفادار قبیلے پر کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ گنکت، ملک شاہ، میرے بھائیوں، تم دونوں پہاڑوں کی طرف جا کر نگرانی کرو۔ دمرل، اوز، تم دونوں اپنے سپاہیوں کے ساتھ داخلی راستوں کو محفوظ بناؤ گے۔ عبد الرحمن، تمہاری ذمہ داری اوطاق کی حفاظت کرنا ہے۔ جو آپ کا حکم سپاسالار بابوجی۔ سپاہیوں، سب جان لے کہ ہمارا مقصد سلطان اور قبیلے کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ اگر کسی نے ہمارے قبیلے پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو ہم اسے بتا دیں گے کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ انشاءاللہ۔ اب سب اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اور اپنی آنکھیں کھلی رکھیں۔ جو آپ کا حکم سپاسالار بابوجی۔ جا سکتے ہو۔ اللہ ہماری مدد فرمائے۔ آمین۔ آ گیا وہ۔ اللہ مددگار ہو ہمارا۔
अमीर हजरत, खैरियत तो है हुसामुद्दीन का राजा? आप हमेशा फतेहयाब हो अमीर हजरत। कितनी जल्दी तुम अपनी दुश्मनी मुझसे भुलाकर मेरी कदम बोसी के लिए यहां आन पहुंचे, हैरत है। और तुम अमीर आलम तोगान, 2 साल पहले तक मेरा हुक्म मानना तो दरकिनार, सुल्तान को मेरे खिलाफ भड़काते थे। मोहतरम, हम आपकी रहमदिली के मोतरफ हैं। आप ना सिर्फ एक फाते कमानदार हैं, बल्कि रियासत के पासदार उमरा के भी अमीर हैं। हम आपसे माफी के तलबगार हैं। बहुत आला। मोहतरम, सामसद किले की मुश्किल फतह के लिए मुहासरे से पहले सिवास में आपका आराम करना हमारे लिए बाइस शर्फ होगा। आराम करने का वक्त नहीं है हुसामुद्दीन का राजा। कमजेरी गद्दार फरार हो चुका है। रियासत के गद्दारों और दुश्मनों के इबरतनाक अंजाम तक आराम के लिए कहीं रुकना हराम है मुझ पर। कांगेरी आपके सिपाहियों से फरार होने के बाद मेरे पास पनाह लेने आया था। रियासत के और आपके हुक्म के खिलाफ जाने की वजह से उसका पुरतपाक इस्तकबाल किया। सिपाहियों, उसके बाद हमने अपनी तलवारें उसके और उसके सिपाहियों के आर पार कर दी, जो उसे बचा कर लाए थे। तो ये उसकी है? उसी की है अमीर हजरत। ये दस्तार भी कमयेरी की है। जब उसका सर उतारा तो ये उसने पहनी हुई थी अमीर हजरत। आला, रियासत की ये खिदमत अंजाम देने पर इनाम जरूर मिलेगा तुम दोनों को। अमीर हजरत, हमारा इनाम आपका जंगी खैमा सिवास की सरजमीन पर कायम करना होगा। हम मुंतजिर हैं आपके। सांसद पेशकदमी से पहले वहां कुछ देर आराम करके हमें इज्जत बख्शिए। आला, कायराल दी, अमीर हजरत, सिपाहियों को इत्तला कर दो, हम सिवास में कुछ देर आराम करेंगे। जैसा आपका हुक्म अमीर हजरत। शिकार करते हुए शिकार हो गए हैं हम, हमारे दरमियान, सरहदों के अंदर और इस पूरी दुनिया में मौजूद लोग हमारी रियासत से हसद करते हैं। मजीद ये कि मंगोलों के हमलों का खतरा हमेशा हम पर मंडलाता रहता है। गयासुद्दीन, मेरे लिए सबसे अहम यह है कि मेरे बाद रियासत का मुस्तकबिल महफूज हाथों में होना चाहिए।
आपकी छोड़ी हुई रियासत में हर जगह गीदड़ मौजूद है बाबा, जो हमें अपने महल में भी नहीं रहने देते। मुझे इस दर्द को बर्दाश्त करने की ताकत दे या रब। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सुल्तान? तशरीफ लाइए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुल्तान के यहाँ कयाम का सुनकर मिलने चला आया आपसे। खुशी हुई। शर्फ तो मेरे लिए है सुल्तान। तशरीफ रखें। मोहतरम इब्नुल अरबी साहब, सबसे पहले मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। रियासत के गद्दारों की वजह से मैं अर्तुगरुल सरदार की मौत का हुक्म देने वाला था। शुक्र है आपने मेरी रहनुमाई फरमाकर अर्तुगरुल सरदार को बचा लिया, और अब हम उन्हीं के कबीले में उनकी इजाजत से पनाह लिए हुए हैं। जब भी कोई किसी की मदद के लिए पहुंचता है तो वो अल्लाह ही के हुक्म से पहुंचता है सुल्तान। वही साहिब अजमत है और हर शय पर कुदरत रखता है। अगर मेरे वसीले से कुछ बेहतर हुआ है तो ये उसी की मेहरबानी है। बेशक हजरत। अर्तुगरुल सरदार रियासत को गद्दारों से पाक करने के लिए तेग बकव हैं और हमें बचाने के लिए भी, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ यहां इंतजार कर सकता हूं। मगर यहां गुजरता हर दिन मेरे दिल में तीर बनकर चुभता है, जैसे कि अपनी आंखों के सामने अपनी ही रियासत की बर्बादी देखना और कुछ ना कर पाना। सूरज के तुलू होने से पहले अंधेरा बहुत गहरा होता है। रियासत की बका के रास्ते में आने वाली हर मुश्किल पर हमें सब्र करना चाहिए सुल्तान। हर वो इंसान जो अल्लाह के दीन की सरबलंदी के लिए मुश्किलात का सामना करता है, वो हमेशा अल्लाह की रहमत से सरशार रहता है और कामयाबी उसके कदम चूमती है। बहुत जल्द अल्लाह का गजब जालिमों और गद्दारों को अपनी गिरफ्त में जकड़ लेगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हम वो दिन जरूर देखेंगे, क्योंकि अपने महल से और कोनिया से दूर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। खिजा के बाद बहार आती है सुल्तान। आप जल्द महल वापस जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। पैगंबर अकरम के ऐलान नबुवत के बाद हमारे नबी और उनके साथी सहाबाए कराम बदतरीन जुल्म और सितम का शिकार रहे। मुशरिकीन ने रास्ते में कांटे बिछाए, उन पर कूड़ा करकट फेंका गया, बहुत जुल्म किया गया। उन्हें जादूगर, शायर और बहुत कुछ कहा गया। हर तरह का नुकसान पहुंचाया। तकालीफ और जुल्म इस कदर बढ़ा कि खातिमुन नबीयीन को अपना महबूब शहर मक्का छोड़कर हिजरत करनी पड़ी मदीने। ये सूरत हाल उनके लिए बहुत तकलीफ दे थी। अल्लाह के हर काम में हिकमत पोशीदा होती है। नबी करीम को उनके सब्र का फल उनकी जिंदगी ही में अता कर दिया गया। जहां उनकी जिंदगी मुश्किल कर दी गई थी, उसी शहर में वो फातिह बनकर दाखिल हुए। खुतबा हज बैतुल्लाह के अजीम शान मजमे में रूह परवर बयान फरमाया आपने। वो जहां भी तशरीफ ले गए वहां के लोगों ने दीन इस्लाम को अपनाया। सब्र करना फतहमंदी है। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है सुल्तान। आप आलम इस्लाम को अजीम देखना चाहते हैं, अपनी रियासत को जिला बख्शना चाहते हैं। आप यकीनन
इस मुकद्दस मकसद के अजीम मर्द मुजाहिद हैं। इत्मीनान रखना चाहिए आपको। इंशाअल्लाह आपकी और अर्तुरुल सरदार की तमाम कोशिशें नतीजा खेज साबित होंगी और अल्लाह की मदद से गद्दारों का जल्द खात्मा हो जाएगा। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से कोनिया के लोग आपका शानदार इस्तकबाल करेंगे। इंशाअल्लाह इस बयान ने मेरी हिम्मत बढ़ा दी। इसके हर लफ्ज ने उम्मीद दिलाई है मुझे। अल्लाह आपसे राजी रहे। अल्लाह हमारी रियासत और अवाम को दवाम बख्शे और सिराते मुस्तकीम पे चलने वाला बनाए। आमीन। आमीन। उठो बेटी। ये सूंघ लीजिए हफ्सा खातून, सांस लीजिए, तबीयत बेहतर हो जाएगी आपकी। आर्तुक भाई, कहीं मेरे बच्चे को तो कोई खतरा नहीं है? मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा हफ्सा खातून, बस आप हिम्मत रखिए। हफ्सा, तुम्हें आराम की जरूरत है मेरी बहन। मेरी प्यारी बेटी, ऐ मेरे अल्लाह, इसे सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। आमीन। हफ्सा खातून की बीमारी की खबर मिली तो मैं इनकी अयादत के लिए आ गई। शुक्रिया, अब पहले से बेहतर है, सेहतयाब हो जाएगी इंशाअल्लाह। महापरी खातून, बमसी, बमसी सिपा सालार, हफ्सा खातून की तबीयत मजीद बिगड़ रही है। आपका कहना ठीक है महापरी खातून। हफ्सा खातून को ऐसे तबीब की जरूरत है जो उनका बेहतर इलाज कर सके। फिलहाल हमारी पहुंच में कोई तबीब नहीं। कोनिया में, वहां हमारे मरहूम सुल्तान अलाउद्दीन केकोबाद ने अलाउद्दीन शिफा खाना बनवाया था। वहां बहुत अच्छी सहूलियात मौजूद हैं। हफ्सा का इलाज माहिर तबीब की निगरानी में बेहतर किया जाएगा। तो क्या आप वहां जाकर हफ्सा की और मेरे बच्चे की जिंदगी बच पाएगी? वो शिफा खाना बहुत से मरीजों को शिफायाब कर चुका है बमसी सिपा सलार। अल्लाह ने चाहा तो हफ्सा भी वहां मुकम्मल सेहतयाब हो जाएगी। महापरी खातून ने ठीक कहा, मैं भी मुत्तफिक हूं। हफ्सा खातून को शिफा खाने में इलाज की बेहतर सहूलियात मैसर होंगी। आर्तुक भाई, ये कैसे मुमकिन होगा? कैसे ले जाएंगे वहां? मुझे यहाँ सुल्तान की हिफाजत पर मामूर किया गया है। कबीला नहीं छोड़ सकता मैं। और फिर अगर मैं वहां चला भी गया तो मुझे देखते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हफ्सा का इलाज कैसे होगा? तुम इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहो बमसी। मैं अपने सबसे बहादुर सिपाही और खवातीन को इनके हमरा भेजूंगा। मैं खुद उन्हें मकतूब तहरीर करूंगी। वहां के तमाम मुआलिजीन हमारे वफादार हैं और हमारा एहतराम भी करते हैं। मेरी जानिब से मकतूब पाकर हफ्सा का वो बेहतर तौर पर ख्याल रखेंगे।
गयासुद्दीन काई कबीले में मौजूद है। मैंने गुनाल को सिवास बुला लिया है। अब उसकी जगह तुम किले के जिम्मेदार हो। तुम अपने बेहतरीन सिपाहियों को लेकर काई कबीले पर हमला करोगे। रियासत के तहफ्फुज के लिए सुल्तान और उसकी मां को मौत के घाट उतारना है तुम्हें। उसके बाद अर्तुरुल के पीछे जाना और उसे भी खत्म कर देना, और अगर कोई मुजाहिमत करे तो सबको मार के काई कबीले को आग लगा देना। मुझे जिस वक्त का इंतजार था वो आ गया। सुल्तान काई कबीले में मौजूद है। अमीर सादतीन का मकतूब आया है आपके लिए जनाब। अमीर सादतीन की तरफ से? खैरियत तो है जनाब? अमीर हजरत ने मुझे सिवास बुलाया है। सिवास में? क्यों बुलाया है? वहीं जाकर मालूम होगा। मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हें किलेदार बनने का हुक्म है। तो फिर आप कब रवाना होंगे जनाब? फौरन। मेरे जाती मुहाफिज अभी बुलाओ यहां। जैसा आपका हुक्म। आए तो मुश, मेरी वापसी तक कुछ तब्दील नहीं होना चाहिए, समझ गए तुम? काई कबीला और हानली बाजार की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखना, और ना रिवायात पामाल करना। जानते हो ना ऐसा करने वालों का अंजाम क्या होता है? मैं समझ गया जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अर्तुरुल सरदार। क्या हालात है हुसामुद्दीन साहब? आपका मंसूबा कामयाब हो गया। अमीर कमयेरी की दस्तार और अंगुश्तरी देखकर कोपैक ने फौरन हम पर एतमाद कर लिया। बहुत अच्छे। उसके लश्करी खैमे की क्या सूरत हाल है? उन्हें लश्करी खैमे और तमाम इलाकों की तफसीलात समझा दी हैं और उसका नक्शा भी बना लिया है। बहुत महफूज मकाम पर है उसका लश्करी खेमा। सादतीन की मौत के बाद कमान मैं संभाल लूंगा। उसके बाद लश्कर में कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अमीर तोगान आपको उसके खेमे तक ले जाएंगे। रात में खेमे के गिर्द और अतराफ में वो पहरा बढ़ा देते होंगे। हम खेमे में उस वक्त दाखिल होंगे जब उनके गुमान में भी नहीं होगा। कोपैक को हम दिन के उस वक्त मौत की नींद सुलाएंगे जब उसे तवक्को नहीं होगी। एक बार कोपैक मर गया तो लश्कर की कमान आपके पास आ जाएगी और हम बहिफाजत निकल जाएंगे वहां से।
पूरी तरह तैयार हूं मैं। किसी भी नागाहानी सूरत हाल में अपनी जान की परवाह किए बगैर आखिरी सांस तक लड़ूंगा मैं। खुद को काबू में रखिएगा हुसामुद्दीन। कुपैक आप और अमीर तुगान को मार डालेगा। आप सुल्तान के लिए ज्यादा अहम हैं। अगर हम शहीद हो भी जाएं तो आप कुपैक के साथ रहकर सुल्तान को कभी अकेला न छोड़िएगा। हमारी रियासत आप जैसे बाहिम्मत जवानों की वजह से हमेशा कायम रहेगी, मुझे पूरा यकीन है। हम सब एक साथ हैं अमीर हुसामुद्दीन। हमले का सही वक्त यही है। अब वक्त आ चुका है तलवारों के निकालने का। कुपैक की इस फतह को हम शिकस्त में बदल देंगे। अल्लाह हमारा हामी नासिर हो। आमीन। हफ्सा, तुम तो जानती हो कि तुम्हारे लिए और बच्चे के लिए शिफाखाना जाना ज्यादा बेहतर होगा। उनके पास सब सहूलियात मौजूद हैं और रियासत के बेहतरीन मुआलिज भी हैं। वहां पर ही खातून का मकतूब भी होगा तुम्हारे पास, जिसकी वजह से जाती तौर पर तुम्हारा ख्याल रखा जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है बमसी। जिस जगह मैं पहले कभी नहीं गई वहां अकेली कैसे रह पाऊंगी। हफ्सा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें वहां अकेला भेज दूंगा? क्या ऐसा कभी मुमकिन हो सकता है? हफ्सा, मुझे जैसे ही मौका मिलेगा फौरन तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अगर आपकी गैर मौजूदगी में हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो? हफ्सा, ऐसा नहीं कहते। ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? हमारा बच्चा और तुम खैर आफियत से कबीले वापस आओगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बमसी। हफ्सा, तुम देखना कि ये मुश्किल भी जल्द गुजर जाएगी। हम अपनी औलाद के साथ बहुत जल्द खुशियां मना रहे होंगे। अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, सब ठीक हो जाएगा हफ्सा। ठीक है, ठीक है बमसी, मैं जाऊंगी।
देखो गुनाल, यह हादसा भी उसी वक्त हुआ जब मैं सफर जंग के लिए बिल्कुल तैयार था। मुझे जान से मारने की कोशिश की गई। बदबख्त, यानी वो असल गद्दार है जो रियासत के लिए जान कुर्बान करने वाले अमीर को कत्ल करना चाहता है। ठीक समझे तुम गुनाल, ठीक समझे। और यही वजह है कि रियासत के तहफ्फुज के लिए उसका मरना जरूरी है। उसे तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ गुनाल सरदार। सादतिन रियासत के लिए नहीं, अपनी बका के लिए काम करता है। तुम हामी चुन लो अपने। किले का फातेह और सरदार आला अपने बल पर बना हुआ है, और अब रियासत के हुक्म पर बिना खून बहाए ये सब तुम्हारे हवाले करता हूँ। मुझे यकीन है कि कारा जैसार किला जिस सरदार के सुपुर्द किया जा रहा है, वो अपने खून के आखिरी कतरे तक हिफाजत करेगा इसकी। समझ नहीं आ रहा सरदार अर्तुरुल, या फिर मुझे किलेदार बनाने वाला, बाप से भी ज्यादा प्यार देने वाला अमीर सादतीन झूठा है। अगर सरदार अर्तुरुल सच्चे हुए तो मालूम करना होगा, हर सूरत मालूम करना होगा। चलो जवानों, चलना होगा हमें। आज का दिन रियासत का हक अदा करने का दिन है, और हमारी जिम्मेदारी बहुत अजीम है। मरहूम सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाद का कातिल, उनका गद्दार बेटा गयासुद्दीन और उसकी मां बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंचेंगे। इन गद्दारों ने इस वक्त पनाह ली हुई है अर्तुरुल जैसे गद्दार के कबीले में। गद्दारों का अंजाम मौत है। इज्जत मां अमीर सादतीन रियासत का इस्तेहकाम और अमन चाहते हैं, और तुम रियासत के बहादुर सिपाही हो जो उसके तहफ्फुज के लिए जान की बाजी लगाते हो। अगर हम दुश्मन की तरह गए तो सुल्तान फरार हो सकता है, लेकिन हम सुल्तान के हुजूर सिपाही के तौर पर पेश होके उसे जान से मार देंगे। सुल्तान, उसकी मां और काई कबीले का हर शख्स, औरतों और बच्चों समेत अर्तुरुल और सुल्तान का पूरा खानदान आज मौत के घाट उतारा जाएगा। अमीर सादतीन जिंदाबाद! अमीर सादतीन जिंदाबाद! चलो फिर दरवाजा खोलो। हम तैयार हैं भाई। हमेशा की तरह जिहाद के लिए तैयार हो तुम तुर्कत। अल्लाह हमें फतहयाब करे। आमीन मेरे भाई। अल्लाह आपकी हिफाजत करे। जज़ाकल्लाह तुर्कत। अल्लाह सुरखुरू फरमाए। इंशाअल्लाह भाई। अल्लाह की अमान में भाई। इंशाअल्लाह मेरे भाई। मेरी जान और जिंदगी रियासत के लिए वक्फ है अर्तुरुल। अल्लाह रियासत और हमारी मदद करे। आमीन आमीन। हमारी ये जंग उनके लिए है जिनसे हम मोहब्बत करते हैं।
قبیلے کی بہادر خواتین کے لیے اور ان جوانوں کے لیے جنہوں نے اس راہ میں جام شہادت نوش کیا، اور ریاست کے لیے یہی دن ہے بہادروں۔ اللہ ہمیں کامیاب فرمائے، آمین آمین۔ چلو اللہ سچ ہے واللہ۔ خوش آمدید امیر حضرت، خوش آمدید امیر حضرت، خوش آمدید امیر حضرت، خوش آمدید امیر حضرت، خوش آمدید امیر حضرت۔ شکریہ حضرت۔ تشریف رکھیے۔ حسام الدین، تگان سردار کہاں ہیں؟ وہ لشکر کی ضروریات کی وجہ سے یہاں شرکت سے قاصر تھے، کام پورا کرتے ہی حاضر ہو جائیں گے۔ آپ بے فکر رہیں امیر حضرت۔ آلہ آلہ، میں حسام الدین کراجہ اور آپ معززین کے درمیان خود کو پا کر خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ ریاست کی خاطر اہم ترین جنگ پہ جانے والا ہوں میں۔ اللہ آپ کو فتح یاب کرے امیر حضرت، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ آمین 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 آمین۔ ہم دشمن کی حرص و ہوس کو اس کے ساتھ ہی دفن کر دیں گے۔ سامست قلعہ جلد فتح ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ آمین 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 آمین۔ لیکن اس فتح کے علاوہ میں کچھ اہم معلومات آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ کس کا خون حلال ہو چکا ہے؟ امیر سعادتین کا۔ خوش آمدید ارطغرل سردار۔ بہت شکریہ۔ حالات کیسے ہیں امیر تگان؟ سعادتین کوپیک اپنے حواریوں کے ساتھ خیمے میں ہے، کیونکہ حسام الدین کراچو کو کسی پر بھروسہ نہیں۔ سعادتین کی موت کے بارے میں صرف وہی جانتے ہیں، اور ہمارے یہ دو کماندار۔ ٹھیک ہے، سعادتین کو بچانے کے لیے جب اس کا لشکر نہیں ہوگا تب میں اس کے خیمے میں داخل ہو جاؤں گا۔ انشاءاللہ ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر جلد از جلد ایسا نہ ہوا تو بھیانک خانہ جنگی ہماری منتظر ہوگی۔
उस गद्दार को अंजाम तक पहुंचा देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हमें कुव्वत अता फरमाए। आमीन। मुझे वापस जाना है अब। सादुद्दीन कोपैक मेरी राह देख रहा होगा। आपके लिए सिपाहियों के लिबास लाए हैं हम। ये कमानदार आपको अपने साथ लेके सादुद्दीन कोपैक के खैमे तक पहुंचा देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आपकी मदद फरमाए। आमीन। आप सब जानते हैं कि मैंने ही कम उम्र सुल्तान को अमित की जंग पे जाने से रोका था, वरना उनका पूरा लश्कर जान से जाता। जल्द ही सामसद की फतह के बाद इंशाअल्लाह हम अमित में भी कामरान होंगे। मेरा इरादा है कि सुल्तान को इस जंग में भी जाने से रोक दूं। बेहतर होगा ये। कम उम्र सुल्तान को हम जंग पर भेजकर अपने लश्कर को खतरे से दो चार नहीं कर सकते। जहां पूरी दुनिया हमारी दुश्मन है, कमजोर लश्कर मुश्किलात और बढ़ा देगा। हुसामुद्दीन, क्या ख्याल है? अमित की जंग पर जाके हमारा लश्कर अजीम फतह से हमकिनार होगा इंशाअल्लाह अमीर हजरत। और इस तरह मंगोलों के खतरे से भी महफूज हो जाएगी हमारी रियासत। आखिरी सांस तक आपके साथ हूं मैं। मेरी जान आपके लिए हाजिर है। हाजिर हो सकता हूं अमीर हजरत। आओ तो गान। मैं इस शूरा को निहायत अहम मालूमात पर एतमाद में लेकर यह बता रहा था कि कम उम्र सुल्तान को आराम से महल में मजे करने दो, ताकि हम सिपाही अपनी रियासत मजबूत कर सकें। इसका आना अच्छी अलामत नहीं है सुल्तान मौसम। अगर मैं मर गया तो मेरी जिम्मेदारी तुम पूरी करोगे। मेरी बात याद रखना गुनाब सरदार। अब बताओ मुझे, मेरी छावनी में कैसे दाखिल हुए? सुल्तान गयासुद्दीन कोनिया का महल छोड़कर काई कबीले में मौजूद हैं जनाब।